Hello students, today we are going to study the rules of IUPAC nomenclature in polyfunctional compound and in alicyclic system. In the previous video we have studied rules of IUPAC nomenclature in branch chain alkanes, in unsaturated hydrocarbons and in organic compound which are containing all the three, that is double bond, triple bond, substituent and functional group. So let's start. Before starting the IUPAC nomenclature, first of all we have to understand what is the distinction between principal functional group and secondary substituent. When there are more than one functional group present in the organic compound, then according to the preference order, one functional group will be represented as principal functional group while the other functional group will be treated as a secondary substituent. So let's start with the principal functional group. तो जो preference order दिया गया था उसके according सबसे पहले जो आया था वो था amine salts, then carboxylic acid, sulfonic acid. In many books sulfonic acid is written before carboxylic acid, but it is wrong because the preference of sulfonic acid is less than carboxylic acid. Next, anhydride, ester, acid, chloride, acid, amide, then nitrile, isocyanide, then aldehyde, ketones, alcohol, phenol and last amines. Next, substituent. There are many functional groups which cannot be treated as principal functional group. They are always treated as secondary prefix or substituent whether they are present alone in the organic compound. Halo, all the halogens, fluoro, chloro, bromo, iodo, nitroso, formula NO, nitro, formula NO2, alkoxy, OR, this is also referred as ether. Next, alkyl chains. Next, phenyl. These are always treated as secondary substituent. They are never treated as principal functional group whether they are present alone in the organic compound. Now next is, in this chart the functional groups are represented in their secondary prefix form. Why they are represented in their secondary prefix form? When they are given less preference in comparison to other functional group in the organic compound, then they are treated as secondary prefix, and this secondary prefix will be represented before द वर्ड रूट. ठीक है, तो देख लेते हैं कि यहाँ पे ग्रुप्स को कैसे सेकेंडरी प्रीफिक्स में नेम किया गया. सबसे पहले देख लीजिए हेलोजेंस. हेलोजेंस को हेलो कहते थे, जैसे कि क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये जो हो गए ये आपके हेलो फॉर्म में लिखे जाते थे वर्ड रूट से पहले. दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, दे आर नेवर द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स. ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए OH. OH इज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. दिस इज अल्कोहलिक ग्रुप. व्हेन इट इज रिटन एज सेकेंडरी सफिक्स it is written as al, but here it is written as hydroxy as secondary prefix. ठीक है, तो देख लीजिए SH. SH भी आपका क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है. दिस इज रिफर्ड एज थियोल, लेकिन जब उसको सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह ट्रीट किया गया तो इसको क्या बोलते हैं, सल्फनाइल या मरकैप्टो. नेक्स्ट है आपका OR. OR इज ईथर. इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज सेकेंडरी प्रीफिक्स नॉट सफिक्स. ठीक है, तो क्या नेम देते थे उसको, एल्कॉक्सी, एंड इट इज रिटन बिफोर वर्ड रूट. नेक्स्ट देख लीजिए NH2. NH2 इज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. when it is referred as secondary prefix it is named as amino. जब सफिक्स के फॉर्म में लिखते थे तो क्या लिखते थे, अमीन. ठीक है, जब एक हाइड्रोजन रिमूव करके वहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप ऐड कर देते हैं NH2 में तो ये क्या हो जाएगा, एल्काइल अमीनो. दो ऐड कर देंगे तो डाई एल्काइल अमीनो. नेक्स्ट इज CHO.
CHO is a principal functional group, but when it is treated as substituent, it is named as formyl. ठीक है. Next is ketone. Ketone is also a principal functional group, लेकिन जब उसको secondary prefix की तरह treat करते हैं तो oxo और keto. Next is carboxylic acid, that is COOH. It is one of the most important functional group, लेकिन जब उसको secondary prefix के form में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? Carboxy. Next is COR. COR is ester. It is written as secondary suffix as OAT, लेकिन जब इसको secondary prefix में यानी word root से पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? Alkoxy carbonyl. Next is COCl, that is acid chloride. It is also a principal functional group, but when it is treated as secondary prefix, it is named as chlorocarbonyl. फिर क्या आ जाता है? Cyanide. Cyanide आपका नेम जो है वो suffix है, लेकिन जब इसको prefix के फॉर्म में हम ट्रीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Cyano. Next is amide, CONH2. CONH2 is also a principal functional group, but when it is treated as substituent, its name as carbamoyl or कार्बोक्सीअमाइड. अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे. किस में करेंगे? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, जहाँ पे एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं. एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल देयर इज सिमिलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, दैट इज कार्बोनाइट्राइल, एंड वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज साइनाइड. ठीक है. तो व्हेन द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ड रूट, ठीक है, when the carbon of the functional group is not included in the word root, it is referred as then carbonitrile. ठीक है. तो हम उसको क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, इस वर्ड रूट में क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी उसका एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. तो अगर हमने उसको वर्ड रूट में इंक्लूड कर दिया, देन दिस फंक्शनल ग्रुप विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, यानी इट विल बी रिटन एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, नॉट सफिक्स. ठीक है. तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जब फंक्शनल ग्रुप आपके सेम होते हैं तो इस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप के साथ ही ट्रीट करते हैं, ताकि तीनों को आप क्या कर सको? एक साथ लिख सको एज ए सेकेंडरी सफिक्स. ठीक है. तो देख लीजिए कि नेमिंग क्या हो जाएगी. अब ये वर्ड रूट के साथ नहीं आएगा, 1 2 3. ठीक है. तो आपका ये नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल. In this example also the functional groups are same. So when the functional groups are same, then the carbon of the functional group will not be included in the word root. It will be written with the functional group, so it will be referred as carboxylic acid. तो देख लीजिए कि नंबरिंग किधर से होगी? इधर से होगी, क्योंकि इधर से ये कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5. ठीक है. तो नेम देखिए क्या हो गया? पेंटेन 1, 3, 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक acid. This example is also similar like the above. In this the functional group is aldehyde group, and when the carbon of the functional group is included with the functional group, it is referred as carbaldehyde. ठीक है. तो इसका मतलब नंबरिंग किधर से होगी? इधर से होगी, because the aldehyde group is near. तो क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4. The carbon of the functional group is excluded from the word root because the functional groups are same. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा आपका? नेमिंग क्या होगी इसकी? ये देखिए चेन का नाम है ब्यूटेन. 1, 2, 4 ट्राई कार्बल डिहाइड. नेक्स्ट देख लीजिए. इन दिस एग्जाम्पल द फंक्शनल ग्रुप्स आर सेम, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, बट द वन फंक्शनल ग्रुप दैट इज हाइड्रोक्सिल. ठीक है. दिस हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप विल बी ट्रीटेड एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है. तो दिस विल बी द साइड ब्रांच. अब नेमिंग हम किधर से करेंगे? यानी सबसे पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी. तो किधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी? 1 2 3. जो ये कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का, इसको हम चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिमिलर है. तो अब साइड ब्रांच वाला फंक्शनल ग्रुप देखिए कैसे होगा. 2 हाइड्रोक्सी, चेन का नाम देखिए प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड.
Now in this example, as you can see, the functional group is same, that is carbonitrile, but this functional group is included with one more carbon, so it will be now treated as a secondary prefix, यानी substituent की तरह treat होगा. So this carbon of the functional group will be included in word root. तो अब इस carbon को हम word root में include कर लेंगे. तो ये क्या हो जाएगा आपका, नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 6. ठीक है, इसको साइड ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे. व्हेन साइनाइड इज ट्रीटेड एट साइड ब्रांच देन इट विल बी रिफर्ड एज साइनो. तो ये क्या हो जाएगा आपका, नंबरिंग देखिए 3 साइनो मिथाइल, चेन का नाम देख लीजिए क्या है, हेक्सेन 1,6 डाई nitrile. This example is similar like the above example. The functional groups are same, that is aldehydic functional group, but this is treated as side branch because now this carbonaldehyde is attached with carbon, one more carbon, so it will be treated as secondary prefix, that is substituent. So when aldehydic group is treated as secondary prefix, it will be referred as formyl. ठीक है, तो नेमिंग देख लीजिए कैसे करेंगे. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी. The carbon of this aldehydic group is now included in word root. तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7. नेमिंग कर लीजिए. 4 फॉर्मिल मिथाइल ब्रैकेट क्लोज, हेप्टेन 1,7 डाई al. In this example also the functional groups are same, that is carboxylic acid, but this branch will be treated as side substituent because this carboxylic acid is attached with one more carbon. Now this carboxylic acid is referred as secondary prefix and named as carboxy. ठीक है, तो नंबरिंग देख लीजिए किधर से होगी, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, नाउ दिस इज साइड ब्रांच, तो नेमिंग देख लीजिए क्या हो जाएगी, किस पोजीशन पे, 3rd 3 कार्बोक्सी मिथाइल, वर्ड रूट हेप्टेन 1,7 डाई-ओइक acid. Why oic acid? Because the carbon of the functional group is now included in word root. यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड है, दिस इज एल्कोहल. एल्डिहाइड इज मोर प्रिफर्ड इन कंपैरिजन टू एल्कोहल, सो एल्कोहल विल बी ट्रीटेड एज सेकेंडरी प्रिफिक्स, दैट इज सब्सटीट्यूएंट. और जब सब्सटीट्यूएंट के फॉर्म में ट्रीट होगा तो इट विल बी रिटन एज हाइड्रोक्सी बिफोर वर्ड रूट. ठीक है, तो एक यहाँ पे एल्कोहल की ब्रांच है, एक आपकी ब्रांच किसकी है यहाँ पे, CH3 की, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है. नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम हेयर 1 2 3 4 5. ठीक है, चेन का नाम हो गया पेंटेन. नेमिंग देखिए कैसे होगी, पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ब्रांचेस, यानी 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, चेन की नेम पेंट. ठीक है, डबल बॉन्ड, पोजीशन 4 इन का ई विल बी रिमूव्ड बिकॉज अल विल बी स्टार्टेड फ्रॉम वॉवेल फर्स्ट अल. इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है, कीटोन है, C डबल बॉन्ड O. ठीक है, तो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम हेयर 1 2 3 4 5. So there will be 2 side branches, one is of alkyl and other is chloro. So alphabetical order will be applied. तो नेमिंग कैसे होगी देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्लोरो आता है, 5 क्लोरो, 3 इथाइल, चेन का नेम देखिए पेंट, पोजीशन देखिए पेंटेन 2 ओन. ठीक है, नेक्स्ट देखिए इस एग्जाम्पल को, यहाँ पे सबसे पहले हमें देखनी होगी कि स्ट्रेट चेन हमारी कौन सी है. ठीक है, तो स्ट्रेट चेन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5. ठीक है, तो ये स्ट्रेट चेन हो रही है हमारी 1 2 3 4 5. तो ये एक कार्बन आपका ये है, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन से जुड़ा होगा. एक कार्बन ये है, ये CH2 और ये
CH3। तो ये आपकी क्या हो गई, साइड ब्रांचेस हो गई। दिस इज़ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ये CH3 है, ये CH2, ये CH3, ठीक है। तो नेमिंग विल बी डन फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो नंबरिंग विल बी, क्योंकि एल्डिहाइड विल बी गिवन मोर इम्पॉर्टेंस, तो 1 2 3 4 5, ठीक। तो दिस विल बी द साइड ब्रांचेस, वन इज ऑफ इथाइल, अदर विल बी ऑफ मिथाइल, ठीक है। तो क्या हो जाएगी नेमिंग आपकी यहाँ पे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करेंगे तो 2 इथाइल दिस, ठीक है। नेक्स्ट 3 मिथाइल, नेम ऑफ चेन पेंट, डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे, 2 इन का ई विल बी रिमूव्ड, 1 अल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे ये देखिए क्या है, ये आपका एसिड क्लोराइड है, ठीक है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में जब इसे सेकेंडरी सफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे तो इट विल बी रिटन एज YL OL क्लोराइड, ठीक है। तो आप देखिए इसमें यहाँ पे कैसे नेमिंग होगी, ब्रांचेस देखिए कौन कौन सी है, OH, ठीक, one is of CH3, this is ट्रिपल बॉन्ड, तो दिस विल बी इंक्लूडेड इन द चेन, ठीक है। अब आपको पता है कि एसिड क्लोराइड की प्रेफरेंस एल्कोहल से ज़्यादा होती है, प्रेफरेंस ऑर्डर में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो नेमिंग देख लीजिए क्या हो जाएगी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ट्रीट करेंगे, पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो नंबरिंग है 3 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, ठीक। चेन का नेम हेक्स, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, 5 आइन, ठीक है। आइन का ई विल बी रिमूव्ड, 1 OL क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, इस एग्जाम्पल में देखिए दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज अमीनो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड है दिस इज गिवन ग्रेटर प्रेफरेंस इन कंपैरिजन टू अमीन ग्रुप, सो व्हेन अमीन इज गिवन लेस प्रेफरेंस इट इज ट्रीटेड एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन इट विल बी नेम्ड एज अमीनो, ठीक है। तो देखिए कैसे नेमिंग होगी, पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, ठीक। तो ये आपकी साइड ब्रांच हो गई, एक साइड ब्रांच ये हो गई मिथाइल की, एक हो गई इथाइल की, ठीक है। और एक ये साइड ब्रांच है जो कि नाइट्रोजन से लगी है, ठीक है। तो देखिए नेमिंग कैसे हो जाएगी, पहले तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा, कौन आएगा आपका, इथाइल किस पोजीशन पे लगा है, 2, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे, 2 मिथाइल। नेक्स्ट देखिए ये आपका किस पोजीशन पे लगा है, 4, क्या हो जाएगा, मिथाइल अमीनो, जब सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह ट्रीट होगा। और ये फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हो गया, यहाँ पे चेन क्या नाम देखिए पहले, ब्यूटेन 1 अल। नेक्स्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर विल बी स्टडीड इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पे मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं, देख लेते हैं कि इसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको पता है कि दिस इज़ पॉलीगन फॉर्मूला, ठीक है। इसमें ये जो कॉर्नर्स हैं ये CH2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो जाएगा तो इसका मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसको हम कैसे रेफ़र करते हैं, इस स्ट्रेट चेन को जब हम साइक्लिक सिस्टम से डिफरेंशिएट करते हैं तो हम किससे डिफरेंशिएट करते हैं, क्या लगा देते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, दैट इज साइक्लो, ठीक है। तो साइक्लो विल बी रिटन बिफोर द वर्ड रूट, तो इसका नेम क्या हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो फर्स्ट का आपका यहाँ पे क्या हो जा रहा है नेम, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से इसका नेम क्या हो गया, सेकेंड साइक्लो ब्यूटेन, ठीक। फिर आप देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड हैं, एल्काइल चेन्स प्रेजेंट हैं, तो अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर प्रेफरेंस हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आ रहा होगा। तो दिस इज स्टार्टेड, दिस एल्काइल चेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम इथाइल E एंड दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम मिथाइल, तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू इथाइल, तो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम हेयर 1 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका नेम, फर्स्ट का नेम देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 इथाइल, 2 मिथाइल, साइक्लो
हेक्सेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इस कंडीशन और इस कंडीशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इन दिस देयर आर 2 एल्काइल चेन्स आर प्रेजेंट इन द सेम कार्बन वेदर दे आर मिथाइल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 एल्काइल चेन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हैं, तो इसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी अब। ठीक है, अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को उतनी प्रेफरेंस नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ 2 एल्काइल हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी इथाइल इस बार कहाँ पे आ रहा है, 3rd पोजीशन पे, तो नेम विल बी गिवन सेकेंड। ठीक है, लेकिन जो नेमिंग है अभी भी वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बेस पे दी जाएगी, लेकिन नंबरिंग में हम एल्काइल चेन के नंबर को ज़्यादा कंसीडर करेंगे। तो क्या हो जाएगा नेमिंग, 3 इथाइल, नेम देखिए वहाँ पे 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए, जब आपकी स्ट्रेट चेन हो, कार्बन की स्ट्रेट चेन हो और उसी में एक साइड सब्स्टिट्यूएंट आपका साइक्लिक सिस्टम हो, तो अब इसको साइड सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे कि नहीं ट्रीट करेंगे, ये इस बात पे बेस करता है कि यहाँ पे जो कार्बन की स्ट्रेट चेन है उसके कार्बन का नंबर क्या है। ठीक है, अगर जो कार्बन की स्ट्रेट चेन है उसके कार्बन का नंबर इस साइक्लिक सिस्टम से कम है या इसके बराबर है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, साइक्लिक सिस्टम को। लेकिन अगर आपका जो साइक्लिक सिस्टम है उसमें कार्बन नंबर लेस है और जो स्ट्रेट चेन है उसमें कार्बन नंबर मोर है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, स्ट्रेट चेन को। तब दिस विल बी ट्रीटेड एज साइड सब्स्टिट्यूएंट, यानी इट विल बी कमिंग बिफोर द वर्ड रूट। ठीक है, तो अब देख लीजिए कैसे नेमिंग हो जाएगी। यहाँ पे प्रेफरेंस किसको मिलेगी, विच विल बी द वर्ड रूट, साइक्लिक सिस्टम, बिकॉज द नंबर ऑफ कार्बन इन दिस साइक्लिक सिस्टम आर 6 बट इन द स्ट्रेट चेन देयर आर 4। तो नेमिंग कर लेते हैं। फर्स्ट की नेमिंग देखिए क्या होगी, किस पोजीशन पे लगा है, देखिए 1 2 3 4। सेकेंड 2 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इस वाले में देखिए यहाँ द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द स्ट्रेट चेन बिकॉज द नंबर ऑफ कार्बन आर मोर। ठीक है, 5, यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है, 5 हैं। ठीक है, तो दिस विल बी द साइड ब्रांच, क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो गई, वर्ड रूट हो गई पेंटेन। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4th वाला देखिए, 4th वाले में फर्स्ट देखिए, फर्स्ट वाले में आप ध्यान से देखिए, जो स्ट्रेट चेन है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड यू नो दैट द डबल बॉन्ड इज गिवन मोर प्रेफरेंस इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन आइदर द साइक्लिक सिस्टम और द स्ट्रेट सिस्टम। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो हाइड्रोकार्बन की चाहे चेन हो चाहे वहाँ पे साइक्लिक सिस्टम हो। ठीक है, हम किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे। तो नंबरिंग किधर से होगी, जिधर डबल बॉन्ड है, 1 2 3, तो ये क्या हो गई आपकी साइड ब्रांच। अब ये अगर साइड ब्रांच हो गई तो इसकी नेमिंग देखिए कैसे हो जाएगी। फर्स्ट क्या हो गई, साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, चेन का नाम आपका क्या हो गया, प्रोपेन 1। अब प्रोपेन का एन हट जाएगा क्योंकि जो आपका यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो ईन है, तो 1 ईन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जब आपके एक से अधिक साइक्लिक सिस्टम एक दूसरे से किसी एल्काइल चेन से जुड़े हैं, यानी किसी स्ट्रेट चेन से जुड़े हैं, तो उस स्ट्रेट चेन को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, चाहे उसमें कार्बन के नंबर साइक्लिक सिस्टम से क्या हो, कम हो। ठीक है, ये तब होता है जब एक से अधिक साइक्लिक सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इनको हम कैसे नेम करेंगे, यहीं पे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये आपका डाई साइक्लो प्रोपाइल। ठीक है, नेक्स्ट नेम मीथेन। यहाँ पे नेमिंग कैसे होगी, अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेट चेन में एक फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, वेयर एज इन द साइक्लिक सिस्टम देयर इज डबल बॉन्ड, सो विच विल बी गिवन मोर प्रेफरेंस वेयर द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, सो स्ट्रेट चेन विल बी गिवन द मोर प्रेफरेंस। तो ये साइड ब्रांच हो गई आपकी। अभी अगर साइड ब्रांच हो गई तो ये आपकी किस तरह से हो गई, 1 2 3। ठीक है, तो 2
हेक्स 2 साइक्लो हेक्स, पोजीशन देखिए डबल बॉन्ड 1 2 3 3 इन, और क्योंकि ये ब्रांच के फॉर्म में है तो YL 3 इन YL, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड पोजीशन पे लगी है। और आगे चेन के नेम क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इस वाले में जो आपकी स्ट्रेट चेन है उसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज़ गिवन मोर प्रेफरेंस इन कंपैरिजन टू दिस साइक्लिक सिस्टम। तो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम हेयर 1 2 3। तो साइक्लिक सिस्टम थर्ड पोजीशन पे अटैच्ड है और उसमें क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड और एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो इसमें भी नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो साइड ब्रांच को नेम पहले करते हैं, क्या हो जाएगा पहले आपका 4 मिथाइल साइक्लो हेक्स। अब हेक्स में डबल बॉन्ड देखिए कहाँ पे प्रेजेंट है, 2 इन, ठीक है, इन का ई रिमूव हो जाएगा YL, ठीक है। और ये जो ब्रांच है किस पोजीशन पे अटैच्ड है इस कार्बन से, थर्ड, तो 3 और मेन रूट का नाम क्या है आपका, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। इस वाले में यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है और ये है अमीन ग्रुप। सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस इन तीनों में से किसको मिलेगी, कीटोनिक ग्रुप को। तो दिस विल बी द साइड ब्रांच, दिस विल बी, ये साइड ब्रांच हो गई, और दिस विल बी द मेन वर्ड रूट, ठीक है। तो अब नंबरिंग देखिए किधर से होगी आपकी, फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है तो 1 2 3, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे ये आपकी साइड ब्रांच क्या है, अटैच्ड है, ठीक है। और यानी सेकंड पोजीशन। फिर आप देखिए इसमें भी आपकी सब ब्रांचेस हैं, ये हाइड्रोक्सी की ब्रांच है, नंबरिंग 1 2 3, ठीक है। ये वाला जो मिथाइल है इस नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो आपका मिथाइल M से स्टार्टेड है, हाइड्रोक्सी आपका H से स्टार्टेड है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आएगा, ठीक है। तो किस पोजीशन पे है ये आपका, 2 हाइड्रोक्सी। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, ये ब्रांच मिथाइल, मिथाइल किससे जुड़ा है, N से, नाइट्रोजन से, तो N मिथाइल। ये अब अमीनो की तरह ट्रीट होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह ट्रीट होगा, तो अमीनो। चेन का नाम आपका क्या है, प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 2 पोजीशन पे ये लगा हुआ है। अब ज़रा देखिए स्ट्रेट, ये जो आपका वर्ड रूट है ये क्या हो गया आपका, फिर मेन साइक्लो हेक्स एन, किस पोजीशन पे, 1 ओन, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए इस एग्जाम्पल में, जब भी आपका अनसेचुरेटेड यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं जैसे बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग का ही डेरिवेटिव माना जाएगा, यानी ये हो जाएगा वर्ड रूट और ये हो जाएगी साइड ब्रांच, ठीक है। साइक्लिक सिस्टम साइड ब्रांच हो गई इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है, अनसेचुरेटेड है, डबल बॉन्ड यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा ये साइक्लो हेक्साइल बेंजीन। ये वाला देखिए, यहाँ पे देखिए इसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी जिसमें एक NO2 ग्रुप इज़ ऑल्सो अटैच्ड, ठीक है। इन दिस 1 मिथाइल ग्रुप इज़ अटैच्ड, दिस इज़ ट्रीटेड एज साइड सब्सटीट्यूएंट, ठीक है। तो दिस विल बी द मेन ब्रांच, ठीक है। नेम देखिए किस पोजीशन पे, 1 2, ठीक है। तो आपका इसका नेमिंग करिए, क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, ठीक, 2 मिथाइल और फिर उसके बाद साइक्लो हेक्साइल। NO2 देखिए मेन ब्रांच में कहाँ पे अटैच्ड है, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे 4 नाइट्रो, फिर उसके बाद लास्ट में वर्ड रूट बेंजीन, ठीक है, ये हो गई इसकी नेमिंग। नेक्स्ट देख लीजिए इसमें कैसे होगा, यहाँ पे आपका कीटोनिक ग्रुप है जिसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, इसीलिए नंबरिंग इधर से होगी। फिर किसको प्रेफरेंस मिलती है,
डबल बॉन्ड को 1 2 3 4 5 6, देयर आर 2 साइड सब्सटीट्यूएंट दैट इज मिथाइल, है ना, तो डाई मिथाइल हो जाएगा। तो देख लीजिए कैसे नेमिंग होगी इसकी आपकी 5,6 डाई मिथाइल। चेन का नाम देखिए क्या है, साइक्लो हेक्स डबल बॉन्ड 2 इन का ई रिमूव 1 ओन, ठीक है, ये हो जाएगी इसकी नेमिंग। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल देख लीजिए। इस केस में देखिए यहाँ पे ये साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जिसको हम कार्बोनाइट्राइल भी कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक। तो हम साइक्लिक सिस्टम कौन सा लेंगे, ये वाला साइक्लिक सिस्टम हो गया, और ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो कैसे हो जाएगा, साइक्लो हेक्स डबल बॉन्ड देखिए 1 2, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है तो नंबरिंग वहाँ से होगी 1 2 3 हेक्स 2 इन का ई यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि इसको हम किससे रेफ़र कर रहे हैं, कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि कार्बन है यहाँ पे प्रेजेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए नेम क्या हो जाएगा, 1 कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। इसी तरह से इसका नेम देखिए, यहाँ पे मैं नीचे रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ, इसका नेम देखिए, ये दिस इज एल्डिहाइड, ठीक है। When carbon is included with the functional group, it is referred as कार्बल्डिहाइड। तो ये साइक्लिक सिस्टम आपका वर्ड रूट हो क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ठीक है। इस वाले को देख लीजिए यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर इम्पॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू कीटोन, ठीक है। तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कार्बोक्सिलिक एसिड, सो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम 1 2, ठीक। तो ये दिस विल बी कमिंग एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी इट विल बी रिटन एज ऑक्सो। तो किस पोजीशन पे है, 2 ऑक्सो। चेन का नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन, and this carbon is attached with written with functional group, so it will be referred as carboxylic acid। तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस इज ऑल्सो ईजी, this aldehyde is given more preference in comparison to ketone, so the numbering will be done from here। तो numbering will be 1 2, ठीक है। तो 1 2 यहाँ पे नंबरिंग हो गई। फिर आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस व्हेन द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज इंक्लूडेड विद द फंक्शनल ग्रुप, इट विल बी रिटन एज कार्बल्डिहाइड, ठीक है। और इसको हम कैसे रेफर करेंगे, ऑक्सो। तो ये क्या हो जाएगा, आपका नेमिंग यहीं पे कर देते हैं, 2 ऑक्सो। फिर आप चेन देखिए, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन का ई प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि दिस इज रिफर्ड एज कार्बल्डिहाइड, कार्बन इज नॉट अ वोवेल। तो ये क्या हो जाएगा, किस पोजीशन पे, 1 कार्बल्डिहाइड, ठीक। नेक्स्ट दिस एग्जाम्पल, दिस इज अमाइड, ठीक है, एंड व्हेन कार्बन इज इंक्लूडेड विद द फंक्शनल ग्रुप, इट इज रिफर्ड एज कार्बोक्सीएमाइड, ठीक है। तो अब ये आपकी क्या हो गई, साइड ब्रांच है, नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम हेयर 1 2, ठीक है। सो 2 मिथाइल साइक्लो, दिस इज पेंटेन चेन, साइक्लोपेंटेन, पेंटेन क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी अमाइड। देखिए दिस इज एस्टर, एस्टर इज गिवन मोर प्रेफरेंस इन कंपैरिजन टू कीटोन, ठीक है। तो दिस कीटोन विल बी ट्रीटेड एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी इट विल बी रिफर्ड एज ऑक्सो, ठीक है। द इथाइल ग्रुप विच इज अटैच्ड विद द एस्टर, दिस इज ऑल्सो रिफर्ड एज सब्सटीट्यूएंट, इट विल बी ट्रीटेड एज सब्सटीट्यूएंट, ठीक है। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी ये क्या हो जाएगा, इथाइल, ठीक। अब ज़रा देखिए नंबरिंग, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इन सेकेंड पोजीशन देयर विल बी ऑक्सो, तो क्या हो जाएगा आपका, 2 ऑक्सो। चेन का नाम देखिए, साइक्लोहेक्सेन, नाउ attached with the functional group that is OO, so it will be written as carboxylate,
ठीक है, कार्बोक्सिलेट, ना कि OH की तरह नहीं लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट की तरह लिखेंगे, क्योंकि ये जो कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलेट। In the next video, we are going to do rules of IUPAC nomenclature in aromatic hydrocarbon, then isomerism. So that's all, students.